हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, आज का वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। और सच कहे तो मुझे भी बहुत पसंद है। आज जो जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो है जुकू वैली पे, और वीडियो का टाइटल है जुकू वैली नागालैंड। जुकू वैली नागालैंड और मणिपुर दोनों स्टेट में आता है। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे वहाँ पे भी आके ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो देख लेते, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। इनके वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और तो आपने नागालैंड के बारे में क्या सुना है? यहाँ के सुंदर नज़ारे, बहुत खाना, वो भी सुना What's cooking today? शायद लोगों के बारे में सुना होगा, वो भी सुना है, फैशन के बारे में तो नहीं सुना होगा, है ना? वो भी सुना है। See, this market is so dynamic. खैर, मेरा नाम है तान्या and I am on a mission to discover more about Nagaland. Okay. और इस सफर में मेरा साथ देंगे मेरे कुछ दोस्त। तो फिर हमारे साथ आइएगा जरूर for Tanya Khanijo presents Take Me to Nagaland. Hi guys and welcome to my channel. This is the last ever episode of Take Me to Nagaland and this is a little embarrassing कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ because this location is legitimately so beautiful. सच में बहुत ब्यूटीफुल So लग for रहा है। this episode we are here in Jakhama and Jakhama village में एक बहुत ही सुंदर कैंप साइट में है। And guess what we are going to be doing in this episode? We are going to go to Zuku Valley and not just are we hiking there, we are also doing a cleanup drive in Zuku Valley. So we've gathered a bunch of locals here and with them we are going to be doing a cleanup drive here. But first let me show you where I am exactly because you have to see these rice fields for yourself to believe me that this is a very beautiful place. तो नागालैंड के सफर के आखिरी पड़ाव पर हम जा पहुंचे जखामा, जहां हम रहने वाले थे इन टेंट्स में, जहां नज़ारों और सुकून की कोई कमी नहीं थी। सच में। और साथ ही साथ हमें मिले हमारे कुछ लोकल होस्ट्स भी, जैसे कि जॉर्ज, अकुतो, कीको और आप्रे। और वो कहते हैं ना, द मोर द मेरियर। तो हमारे कुछ दोस्त जैसे कि चेतन, अभिषेक और गौरव भी साथ में थे। Days we were told would never grow old here in Wichita. So at the campsite we have Apri and Kiko with us and we are going to, while making dinner, sing a local song. मुझे वैसे नहीं आता गाना but I'm going to just play some music along. Kohimate takekan misalake putani wakapara ahyakan chalak chalak ahishe mukuchan takekan sakuri ahishe zene boto para ahyakan jagara Kohimate takekan misalake putani wakapara ahyakan chalak chalak और कैंप्स में तो रहने का अनुभव ही कुछ और होता है। सच में। मजे की बात ये थी कि इस कैंप साइट से हम जाने वाले थे जुकू वैली की ओर। और अगर आप जुकू वैली के बारे में नहीं जानते तो बहुत ही जल्द जान जाओगे। This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling you. अच्छे फेस वॉश का कमाल है। Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Are we sure it's the last time? Sure that this is the last time.
watching the stars and the city lights. And now the moon's in a heartbeat. Coming back where it all began. The tales we were told we would never grow old in Wichita. So here we are. हम लोग अपने कैंप साइट से निकल के एक कम से कम आई थिंक 40 मिनट्स वी वर ऑन द रोड एंड रोड काफ़ी पथरीली थी यहाँ के रास्ते तक. So this is the hike trail to Zuku Valley. This is from the Viswama village side in Nagaland. तो हम लोग इस रास्ते से जाने वाले हैं. This रास्ता is mostly the easiest one to go to Zuku Valley. It's going to take us about 3 hours to get to the top. But on the way, we also have a bunch of volunteers who I'm going to introduce you to very, very shortly. And with the volunteers, we are going to be doing a cleanup drive because sadly, इधर पे भी बहुत सारा कचरा है. यहाँ पे भी लोग आके बहुत गंदगी मचाते हैं. तो जो भी यहाँ पे आए, please, please, please take care that you don't bring any plastic with you. Even the water bottle that you carry with you, कोशिश करो कि अपने साथ लाओ, अपने घर से पानी की बॉटल लेके आओ, लेकिन यहाँ पे मत थ्रो करो. वहाँ ऊपर जाके आपको पानी मिल जाएगा बॉटल रिफिल करने के लिए. एंड इफ़ यू ब्रिंग एनी स्नैक्स विद यू, इट्स बेस्ट इफ़ यू कैरी इट अलॉन्ग विद यू एंड ब्रिंग इट डाउन विद यू. सो ट्राई नॉट लिटर द रूट. And for all the people who've already ended up littering the route, we are going to be cleaning it up and start with picking up some of the trash. जैसे मैंने फोटोज़ देखे वैली के, तो आज मज़ा आएगा. इनके साथ तब पूरा महसूस कर लेंगे कि हम भी उस जगह पे हैं. हम भी ज़रूर जाएंगे जल्दी, पर आज देखने का कुछ अलग ही मज़ा आएगा. सच में इतने सारे फ्रेंड्स साथ में होंगे तो बहुत मज़ा आता है घूमने का. So here are all the volunteers behind me. We'll do a quick round of names. Everybody tell your names. That's Kiko. Akho. We know Nicholas. Asu, Nico, Aviho. And Akito. That's me, that's Larissa. And it's been about 10 minutes and we've already got one full bag. So this is how much trash we have in this bag. And most of it is plastic bottles. क्या आपने एक बात पे कभी गौर किया और इस बारे में अपने दिल की गहराई से एक बार सोच के देखो. हम इंसानों को हमेशा हरियाली, हरी चीज़ें और नेचर, इन सब चीज़ों से कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी और शांति महसूस होती है. क्या यही वो वजह नहीं है कि हम लोग ऐसी जगहों पे जाना क्यों पसंद करते हैं? So you know what's the sad part about all the trash that goes into the mountains and all the plastic that is disposed of? It can either be collected and we can try our best and segregate and take it back to us, but more often than not, because there's no recycling facility here, it ends up getting burned, and that is exactly the reason why you should try and avoid disposing of these bottles and using them in the first place, because plastic, once that enters into the system, it is going to stay here forever. जी हाँ दोस्तों, हमारे पहाड़ों पे जो बढ़ता हुआ कचरा है, या तो उसे जला दिया जाता है या तो उसे पहाड़ पे बस छोड़ दिया जाता है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे कचरे को हमें डिस्पोज करने का. बहुत गलत बात है. आप जहाँ पे नेचर की इतनी ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं और उसी जगह को गंदा करके आते हैं, तो बहुत ख़राब चीज़ है. इन चीज़ों को सबको याद रखना चाहिए. ये नेचर कब से है यहाँ पे, क्या हमें इस बात का अंदाज़ा भी है? एंड नेचर इज़ सो यूनिक. जैसे इस जगह को ही देख लो, एक गहरे जंगल के ख़त्म होते ही एक ऐसी जगह शुरू हो जाती है जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बैम्बू उगता है और यहाँ पे लोग रह भी नहीं पाते हैं. वाओ. We need warm clothes, yeah. I'm feeling cold. हमारा ये रहना बैग warm clothes वाला. So this is Zuko Valley, everybody. As soon as we entered Zuko from that part where we were climbing up, एकदम से पूरा नज़ारा बदल गया. All of the vegetation is also different, and it's all covered with bamboo and it's green, and you can see layers and layers and layers of just those rolling mountains.
की डॉर्मेट्री में आ गए हैं। यहाँ पे डॉर्मेट्री में एक केयरटेकर होता है। वी हैवंट मेट द केयरटेकर येट बिकॉज आते ही हमने मैगी खानी शुरू कर दी। मैगी खा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। वी आर ऑल प्लेइंग अ लिटिल गेम ओवर हियर। द क्लीनअप ड्राइव इज डन। वी आर गोइंग टू टेक ऑल द ट्रैश बैक विद अस टुमारो। दिस प्लेस, ये जगह, ऐसा नहीं लगता कि ये हमें बुला रही है, थोड़ी सी खुशी का एहसास दिला रही है। वो मैगी खाना, न जाने जिसके पैकेट्स आखिर कहाँ चले गए, वो ग्रुप गेम्स, वो खुशी, वो हंसी। वो लोगों के साथ बैठकर खुली हवा के नीचे लेम जोक्स क्रैक करना और मे भी कुछ गो स्टोरी सुनाना। अभी तो करने बैठे। थोड़े अपनीपन की फीलिंग आती है ऐसी जगह में। मैं तो ऐसे जगह पे सालों साल रह सकता हूँ सच में। This is where we are bunking in tonight. It's pretty basic, but that's the fun of coming to Zuku. Can you like a working ball? गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोगों का स्लीपिंग एक्सपीरियंस इस डॉर्मेट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हम लोग क्या बोले, हमने अभी भी सब कुछ पैक किया। दीज वर द स्लीपिंग बैग्स वी वर स्लीपिंग इन। I mean, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था and we are not people who believe in ghosts and all. या As such, लाइक हमने- मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। मैं तो फिर भी ज़रा करती हूँ, लाइक थोड़ा डर तो लगता है, but very honestly, we've heard a lot of stories about this place, about Yeah. this being the valley of Ghosts. In the night we actually heard like actual thumping. Yeah, we're coming. she I heard was the like, thumping. ah. We heard this and I thought she was doing it. And I thought she was doing it to ward off the rats, but it And was she neither like one तुमने of us. आवाज़ सुनी and I'm like, I thought you did it, and she's like, I didn't do it, I thought you did it. I'm like, what? And then the next day we asked this other guy. Right below us. Right below. Like we Right could below, see- like we could feel it coming from below us. Honestly, fucking in freaky. Yeah, but in all honesty, don't like get scared by our Yeah, experience. it's a good experience. It's a good experience. You should come here and experience it because यहाँ पे dormitory में बहुत सारे लोग थे. हाँ, तो it's- डर नहीं लगता हाँ, उतना। so it's not like we were alone or anything, but it was a very interesting experience. So you should definitely come and feel it for yourself. So right now we're leaving for a hike to the valley below. ज़ूकू वैली की एक्चुअल यहाँ पे आने का पर्पज़ यही होता है कि आपको वैली जाना होता है। और आज का मौसम ऑब्वियसली बहुत ठंडा है बिकॉज द इंटायर नाइट इट इज़ रेनिंग, सो द इंटायर वैली इज़ वेट टुडे एंड दैट ओवर देयर व्हाट यू सी इज़ अ हेलीपैड. So we are not going to the helipad right now, we are going directly to the valley, and to go to the valley it will take us about 45 minutes. And here we see the first view of the valley, and हमारे साथ अभी लारिसा है, चेतन है, and we have a few more people with us. That's Nicholas, that's Pele, and sorry, what's your name? Aso, and that's Aso. यार ऐसे हरियाली के बीच में खुशी तो ऑब्वियसली मिलती है, बट यू नो समटाइम्स हाउ यू फील सो एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर अ सर्टेन फ्रेंड ऑफ योर्स. जैसे निकोलस का आज 100th एवर ट्रैक था ज़ूकू वैली का, जिसकी वजह से वो अपने ट्रेडिशनल अटायर में पूरा तैयार हुआ अंगामी आउटफिट में, और उसके ऊपर से हमने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची. लाइक इट वाज अ प्रॉपर फोटो शूट फॉर हिम. और मुझे पता नहीं कि आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट समटाइम्स बीइंग अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस हैप्पी मेमोरी गिव्स यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस. What is it called, Nicholas? Angami traditional food attire, but I'm not going my headgear because it's difficult to carry. Okay, but he's also carrying a dao over here. Wow. So dao is our main weapon. For Main our weapon for Angamis. Wherever Okay. we go, we used to do our dao. Like in the olden days. You don't wear your traditional outfit all the time. Yeah, like we usually wear it during special Festivals occasions. and occasions.
Okay, now that we are talking about cleaning Zuku, I have to also talk about the harsh reality. And the harsh reality here is कि कुछ trash जो है, the mini plastic that we are collecting, at least in the valley itself, it's getting burnt in the background because there's no other way of disposing it off. I mean, at least जो बड़ा plastic का सारा waste हम लोग collect करेंगे, we are going to take it back to camp in Jakhama and we are going to segregate all that trash and we'll try and recycle as much as possible. But the mini trash is just getting burnt here, which is a local practice. So I think the best way of dealing with trash is definitely dealing with it at source and not consuming it in the first place. As personally, I haven't been buying plastic bottles in a very, very long time. यार ज़ूकू वैली में क्लीन अप ड्राइव करते करते ना मेरे जहन में एक और बात आई कि ज़ूकू इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल मार्वल. बट ऑल दीज ब्यूटीफुल प्लेसेस कम विद अ कॉस्ट, यू नो. एंड बाय कॉस्ट मेरा मतलब पैसा नहीं है. मेरे कहने का मतलब है द इन्वायरमेंटल कॉस्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद कमिंग टू दीज प्लेसेस. बिकॉज आखिर जितना भी कचरा है वो कहाँ जाता है. हम लोग चाहे कितने भी डस्टबिन का इस्तेमाल कर लें, वो पड़ा तो पहाड़ों पे ही रहता है ना. हम लोग कितना भी क्लीन अप ड्राइव कर लें, कहाँ जाएगा ये सारा कचरा. So here I have Matthew Vizo with me and he's the current caretaker of the dormitory and the valley. How do you think people can stop polluting the valley? The best is to stop bringing plastic to the valley. Yeah. So do you think there should be a ban on plastic? Yeah. There should be. As a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. बहुत ही ब्यूटीफुल है सब कुछ. मज़ा आ गया देख के, सच में बहुत मज़ा आ रहा है. आप देख के इतने एक्साइटेड हो सकते हैं तो आप उस जगह पे जाके कितने एक्साइटमेंट फील करेंगे, ये सोच रहा हूँ मैं कब से. So आज हमारा लिटरली पूरी ट्रिप का लाइक एन 11-day ट्रिप का आखिरी दिन है. Seriously, it was a very long trip but filled with so many different things. ऐसी तेरी कितनी ट्रिप्स रही हैं पहले? I mean, I have had long trips, but we did so many different things. It feels like we've been traveling for a month now. It does honestly. और आज का भी दिन is not fully complete because हमने जितना भी trash collect किया था during our hike to Zuku Valley, we are going to be segregating all of that trash, all the trash that we could manage to bring back because honestly that hike was so intense. We couldn't bring back as much trash. हम लोग जितने भी bags वापस ला पाए, which were about like I think 10 bags because we were quite a lot of volunteers. We are going to be segregating all of that trash today. So we started plastic in that bag? Or can I put it? यार एट द एंड ऑफ द डे ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको कचरा दिखाने के लिए नहीं बनाई है. Let's count bro, who's winning? सबको पहाड़ों पे ट्रैवल करना आज की डेट में पसंद तो आता है बट यार उसकी वजह से जितना हमारा कचरा जनरेट होता है, जितना प्लास्टिक बचता है, जितनी उन डेस्टिनेशंस पे लोड बढ़ता है, वो अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. Because if we don't try, who will? और कितना आसान है अवॉइड करना. एटलीस्ट ये जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, पेट बॉटल्स होती हैं, अपनी खुद की बॉटल कैरी करो यार. कितना मुश्किल होता है. फ़िल्टर बॉटल में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो तो कोशिश करो माइंडफुली थिंक अबाउट द इन्वायरमेंट. हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता पर कोशिश तो कर सकते हैं ना खुद की सोच बदलने की. और कह सकते हैं ना खुद से कि मेरे होने से फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक इंसान से ही तो जुड़कर अनेक बनते हैं. और कह सकते हैं ना खुद से कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और सोचने के काबिल हूँ, मुझे पल भर की असुविधा मंजूर है, पर मेरे होते होते ये दुनिया बिगड़ने दूँ ये हरगिज़ मंजूर नहीं है.
तो फ्रेंड्स ये था वीडियो और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो था। और जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, टेंट में रह रहे थे, वहाँ का उन्होंने दिखा, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस हर जगह पे नहीं मिलता कि आप टेंट में रहे और इतने सारे लाइन में टेंट्स दिख रहे थे। जितने भी टूरिस्ट आते वहाँ पे रहेंगे तो मतलब एक अलग ही मज़ा होता है। जो लोग घूमने आते हैं उनका एक अलग ही उस टाइम माइंडसेट होता है। और वो मतलब हर कोई आप कहीं पे भी घूमने जाता है तो टेंट हो और ज़्यादा वहाँ पे इतनी शांति दिख रही थी, इतना साइलेंट था माहौल कि आप अकेले में बैठ के, जैसे आप किसी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, आपके लिए वो जो शांति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और वहाँ पे इतना अच्छा मौसम दिख रहा था। और जैसे उन्होंने ऊपर जाना स्टार्ट किया वैली की तरफ, तब उन्होंने वहाँ का जो स्टार्टिंग पे कचरा है वो इकट्ठा किया, वहाँ पे जलाया उन्होंने। और ऊपर जाते जाते भी वो कचरा इकट्ठा करके जा रहे थे और सबको मैसेज दे रहे थे कि और एक्चुअली ये बात सही है, आप वहाँ पे अपना मतलब जो भी स्ट्रेस है वो उतारने जाते हैं, वहाँ पे अपना जो अच्छा फील करने के लिए जाते हैं, अपनी सेहत के लिए जाते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए जाते हैं, और उसी जगह पर आप गंदा करके वापस आते हैं, ये सही नहीं है। और वो वैली इतनी ब्यूटीफुल है, आप एक्चुअली वीडियो देखने के बाद तो मैं बहुत कुछ मेरे मन में चीज़ें आ रही थी कि अब तक गवर्नमेंट क्या सोई हुई है, सच में स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट सोई हुई है। नागालैंड में भी और ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, स्पॉट्स है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अरुणाचल प्रदेश में, मिज़ोरम, सिक्किम और बहुत ऐसे मणिपुर में भी है। आप वैली के एक साइड मणिपुर में भी है। तो ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको इतना डेवलप करना चाहिए। ऐसी जगह पे रोपवे होना चाहिए। जो लोग जल्दी से जाके वापस आना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा। अगर आपको कई लोग ट्रैकिंग करते हैं क्योंकि उनको पसंद होता है, अभी कई लोगों को ऊपर चढ़ नहीं सकते पर उनका जाने का बहुत मन होता है, तो वो उस जगह पे 3 घंटे चल के तो जा नहीं सकते, पहाड़ पे तो वो चढ़ नहीं सकते, पर उनका बहुत है मन जाने का, पर वो चल नहीं सकते इसलिए जा नहीं सकते। तो ऐसे जगह पे रोपवे होना चाहिए। आप मान के चलिए कि हम हिंदी मूवीज़ में हमेशा यूरोप के सीन्स देखते हैं जो वैली जैसे है, पर इतने ब्यूटीफुल नहीं है। अभी तक बॉलीवुड के यहाँ पे कितने शूट होने चाहिए, इतने सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर अब तक इतना छुपा हुआ क्यों है ये समझ में नहीं आया। इसके बहुत सारे कारण भी है पहले, और इसमें बहुत कुछ पहले घट चुका है, पर अभी वो सब कुछ पास्ट है। हमें आगे निकलना है, आगे अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जुगू वैली जैसे, उनको बहुत जल्दी डेवलप करे और लोगों के लिए जितना वहाँ पे ऊपर जाने के लिए हेल्प का कुछ भी ऐसे रोपवे हो या फिर वो ट्रेन होती है छोटी, उस टाइप कुछ करे तो बहुत बेटर होगा। वैली की बात करते, क्या बात करें, क्या नज़ारा था यार। वहाँ पे बीच बीच में एक पेड़ था, वो ऐसे लग रहा था कि मतलब आप जैसे किसी पेंटिंग में देखते हैं उस टाइप लग रहा था सब कुछ। किसी पेंटर की एकदम ब्यूटीफुल कल्पना कह सकते हैं, इमेजिन कह सकते हैं, इस तरीके से लग रहा था कि हम किसी सपने में हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि हम किसी एकदम स्वर्ग में आ चुके, इस तरीके का लग रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और पूरा जो वो कह रहे थे, मैं तो गया नहीं ऊपर, पूरा बाम्बू के पेड़ है और वो एक लेवल में ऐसे दिखते पूरे पहाड़ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था सच में। अब उन्हें ऊपर जाने के बाद रात में भूत की कहानी भी बताई, पर इन बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत होते नहीं है। अगर भूत होते तो फिर जिसके मर्डर हो चुके हैं या किसी के साथ कुछ गलत हो चुका है तो अब तक वो बदला लेने के लिए पूरा भूत और इंसानों के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी बातों पे एक्चुअली इनकी भी एक, इन्होंने बातों बातों में बोल दिया, पर ऐसी चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये वीडियो ये अब तक कम से कम 10 लाख लोगों ने देखी हुई है। तो ये बातें जिन लोगों को भी इन बातों से डर लगता है तो वो फिर अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों पे जाने के लिए। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भूत होता ही नहीं है और किन लोगों ने देखा है पता नहीं, या फिर उनकी कल्पना हो सकती है। ओवरऑल बात करें वैली की तो एक ही वर्ड है कि हम जब सपना देखते हैं
और सपने में हम जो सबसे ब्यूटीफुल जगह है देखते हैं, क्योंकि हम रियल में तो नहीं देख सकते जितना हम सपने में ब्यूटी देखते, उस टाइप लग रहा था कि एक सपने की तरह है जुको वैली, और आप उस जगह पे जाके उस सपने को जी सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।